Hello guys, in this video we are going to talk about the major topic, and that is development of ideas in writing. This topic is important for those students who are studying functional English or academic English in the BS, ADS and ADP. Without wasting any time, we are going directly toward the topic. First of all, I'm going to define writing. राइटिंग इज़ वन ऑफ द प्रोडक्टिव स्किल्स। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि जी प्रोडक्टिव स्किल एक्चुअली लैंग्वेज के अंदर दो स्किल्स होते हैं, वन इज़ प्रोडक्टिव स्किल एंड द अदर वन इज़ रिसेप्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल्स में आपके पास राइटिंग और स्पीकिंग आ जाता है जिसमें आपने आउटपुट देनी होती है, और रिसेप्टिव स्किल्स जिसमें आपके पास लिसनिंग और रीडिंग जिसमें आप इनपुट लेते हैं, मीन्स यू आर रिसीविंग सम इंफॉर्मेशन. So writing is one of the productive skills that is used to convey ideas and information in a written form. It is not an easy skill to master because we need to be accurate not only in our grammar and lexemes but also about the ideas or content. So लोगों को तो ये लगता है कि writing skill बहुत easy है, हम easily लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली उसमें आपको वोकेबलरी पे ग्रिप होना, फिर अदर देन दैट ग्रामर पे ग्रिप होना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और आपके आइडियाज़ टू द पॉइंट हों, शार्प हों, विटी आइडियाज़ हों, ये भी बहुत ज़्यादा, और ये आपका विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके ये स्किल इम्प्रूव होता रहता है. That is why experienced writers understand that their writing does not just happen. It has to be created and developed by considering all complex cognitive processes of process-oriented approach for successful writing. There are two approaches. One is process-oriented approach and the other one is product-oriented approach. तो ज़्यादातर जो अच्छे राइटर्स हैं, जो आज के मॉडर्न लिंग्विस्ट हैं, वो प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच के ऊपर फोकस करते हैं. प्रोसेस ओरिएंटेड मींस कि आप इसमें वन बाय वन एक चीज़ सीख रहे होते हैं, और आप ये नहीं समझ रहे कि आपने एक टारगेट अचीव करना है और एंड यू कैन अचीव दैट टारगेट इंस्टेंटली. वो आपके लिए ये एक स्किल है, एंड इट गेट्स पॉलिश्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो आपके पास यहाँ पे जब भी आपने सक्सेसफुल राइटिंग करनी है, उसमें कुछ स्टेजेस हैं या उसमें कुछ targets हैं that you have to achieve. When the first one is pre-writing activities, दूसरा है जी defining audience, using a variety of resources, planning the writing, cohesion, coherence, drafting and revision. Now this is the overall writing process. The first one is pre-writing, the second one is drafting, third one is reviewing, fourth one is editing, fifth one is proofreading, and the last one is sharing or publishing. सो हमने जो है हमने इसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि प्री राइटिंग में एक्चुअली आपको आइडियाज आते हैं दैट यू यूज व्हेन यू हैव टू राइट समथिंग. Creation and development of ideas in writing come under the pre-writing stage. As I already told you, it is a skill of idea incubation, a way to generate ideas and capture your thoughts through writing. Following is a description of some of the common pre-writing. So I'm going to talk about some of the basic or the most common strategies that we can use in order to generate ideas when we have to write on any topic. And the first one is brainstorming, and I think so most of you would be knowing it. Brainstorming is a creative technique used to generate ideas in a group setting. आपके teachers भी आपके साथ अक्सर ही आपसे practice करवाते होंगे that they give you a topic and write it on the board, and they make your groups and they ask you to share your ideas on a specific topic. That is called brainstorming. Moving toward the second type, that is free writing. Free writing is the practice of writing whereby we write down our thoughts as they come to us without stopping and without regard for spelling, grammar or any of the usual rules for writing. तो जैसे जैसे आपके पास आइडियाज आते जाएंगे, यू वुडंट बी कंसिडरिंग द स्पेलिंग्स के मुझे इसके स्पेलिंग आते हैं, वेदर आई एम राइटिंग अ सेंटेंस, तो वो सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकल है या नहीं ग्रामेटिकल, हम इन चीज़ों का नहीं, हमें जस्ट आइडिया से गर्ज होगा. That is called free writing technique. It is somewhat like similar to stream of consciousness. You might have heard about stream of consciousness, that is mostly used by the writers of 20th century, and Virginia Woolf, इसके बारे में आपने उनका नाम भी सुना होगा, जिन्होंने आई थिंक so सबसे पहले ये stream of consciousness भी यूज की थी, where we allow our mind to go where it will. The third technique is clustering or mind mapping. Clustering, also known as mind mapping, is a strategy to explore relationships and association between ideas. Now you have generated ideas, but उसमें कुछ ideas दूसरे ideas से linked होंगे, तो हम उनके दरमियान जो है association ढूंढते हैं, उनका relationship क्या होता है, तो इस base पे भी हम आगे move on करते हैं.
नेक्स्ट है जी क्यूबिंग. क्यूबिंग इज अ critical thinking process that involves examining a writing project from 6 different angles to generate ideas. जब आप different angles के through जो है इंफॉर्मेशन को या आइडियाज को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर ये कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप इन क्वेश्चंस को अपने जहन में लाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास कुछ ना कुछ आइडियाज आ जाते हैं. सबसे पहले जैसे व्हाट इज इट लाइक और अनलाइक, what makes up its constituents, how can it be used, finally what are its pros and cons, and how can you oppose or support it. At the end we would have an angle or an outline on how to approach. तो जब आपके जहन में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इस तरह के जनरेट होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास कुछ इन्फो आ ही जाती है उस टॉपिक से रिलेटेड. द नेक्स्ट वन इज लिस्टिंग. When we have to write about a specific topic, we can jot down a list of single words. आपके पास word आ रहे हैं, phrases हैं, clauses हैं, आप उनकी list बना देते हैं. Then we arrange that list. तो हमें जिस तरह लगता है कि ये टॉप पे ये आइडिया मैंने लिखना है, सेंटर में मेरी बॉडी ये बनेगी, ये मेरा टॉपिक सेंटेंस बनेगा, पहले हम लिस्ट बना लेते हैं, फिर हम उसे प्रॉपरली एक लॉजिकल ऑर्डर में हम अरेंज कर लेते हैं. The next one is looping. Looping is a form of recursive and increasingly directed free writing that narrows or focuses a topic in stages or loops. इसमें जो है आप लोग अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो उसे आप फर्दर स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं. जैसे अगर हम ट्रैफिक रूल्स की ही बात कर ले तो ट्रैफिक रूल्स के इंट्रो लिख लेंगे, उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्या उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, पाकिस्तान में कितने लोग हैं, इंडिया में उसे कितने लोग, सब कॉन्टिनेंट में कितने लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग उसे फॉलो नहीं. तो देखिए अब हमारे पास डिफरेंट सब टॉपिक्स बन गए, डिफरेंट लूप्स या स्टेजेस बन गए. अब हम उन तमाम जो स्टेजेस बनी या लूप्स हैं हम उनके ऊपर फर्दर आइडियाज को जनरेट करवा के उनसे रिलेटेड हम पैराग्राफ लिखने की ट्राई करते हैं. The next one is researching. Researching is the process of studying a subject carefully or in detail. When you intensively go through any topic और आप उसके ऊपर कोई old information, new information gather करने की कोशिश कर रहे होते हैं, that is called researching. आपने जैसे कोई टॉपिक जेंडर स्टडीज से रिलेटेड कोई टॉपिक पिक किया, आपने देखा इसके ऊपर आपके पास ओल्ड इंफॉर्मेशन क्या है, दैट वुड फॉल इनटू लिटरेचर रिव्यू. या इससे रिलेटेड अगर आपने कोई न्यू इन्फॉर्मेशन तो आप कौन सा टूल लगा के न्यू इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रॉपर आपको मेथडोलॉजी और टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है. नेक्स्ट इज एंड द लास्ट वन इज WH क्वेश्चंस. WH क्वेश्चंस यूजुअली स्टार्ट विद वर्ड बिगिनिंग विद WH, जिसके अंदर अब देखें ये जब भी अगर कभी भी आपको किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन लेनी हो तो सबसे इजी ट्रिक ही होती है कि आप कुछ WH वर्ड, व्हाट इज इट, वेयर इज इट यूज, व्हेन इज इट यूज. तो ये देखें व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, व्हिच, हुज, हाउ, ये जो वर्ड है ये आपको काफी हद तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं. So in conclusion, development of ideas in writing is not an easy task, but this skill can be improved with the passage of time. We should focus on the steps of process-oriented approach of writing in making our writing a success, and especially on pre-writing strategies. So जो development of ideas actually writing के अंदर जो development of ideas है वो आप इन techniques से कर सकते हैं, लेकिन अब AI modern tools आ चुके हैं जिसके अंदर ChatGPT, WhatsApp के अंदर आपके पास AI मौजूद है, तो आप वहाँ पे भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई आइडियाज चाहिए आप लिखेंगे वो आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन इससे आपकी क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई बाय योरसेल्फ, देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एनी टूल कि आप उसको अपने ताकि जो आपके आइडियाज़ हैं उन्हें आप पॉलिश कर सकें. दैट्स इट फॉर टुडे. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन टाइप इन द कॉमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच.